Hello student, MRK Jha from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today I have brought a class of the subject mathematics for the students of class 10th from the chapter a pair of linear equation in two variables. In this video, today I am going to explain some language problems, and this is the part 8 of this chapter. And just before this part, in 7th part I have explained some language problems also. And actually these questions, I have written some questions. These questions are from R.S. Agrawal. Today I am going to explain question number 32, 33, 35, 37 and 38. Today I will explain 5 questions, and on basis of these 5 questions you may be able to solve about 18 or 19 questions. So see questions one by one. And question number 32 is given. And just I am reading the question 32. A man covered a certain distance at uniform speed, and if the train had been 5 kilometers faster, it would have taken 3 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 4 kilometers per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. So one more important thing in this question is, just before, other than this question, this is the only question of this exercise in which only one thing is demanding. And other than these questions, in all the questions, 2 things are demanding. And both the things are understood by, just considered by 2 variables, x and y. Okay. Actually, but in this question, length of journey is given. A length of journey means distance covered. So only one distance is given to find for this. So when only one thing we have to find in that question, we don't need to consider those things. Okay. So the coordination with distance is speed and time. So we will not consider distance. We have to consider speed and time. And speed, just I have considered x kilometer per hour and time y kilometer per hour. Okay. So when speed is x kilometer per hour and time is y kilometer per hour, then the original distance will be, distance is equal to speed into time. So distance is equal to speed into time, that is xy. This is the original distance. Okay. Now question says, if the speed had been increased by 5 km per hour, it means now speed will be x plus 5, and time when reduced by 3 hours, then y minus 3 will be time. So in first case, speed into time is equal to distance. So I have written speed into time is equal to distance, and distance is xy and speed is x plus 5 and time is y minus 3. And once again I have multiplied x plus 5 and y minus 3. And when these 2 are multiplied, then this xy and xy will be cancelled. After cancellation, this xy, we get minus 3x plus 5. Where this minus 15 is transferred to that side, then we get minus 3x plus 5y is equal to 15, and this is the first equation. Okay. In case 2, the question says, if the speed is decreased by 4 km per hour, so when speed will be decreased, then time will be increased. When speed is decreased by 4 km per hour, then time is increased by 3 hours. So now it can be understood, speed is equal to x minus 4. Okay. And time is equal to y plus 3. So speed into time, once again distance, and distance is xy, and speed is x minus 4, and time is y plus 3. So once again we have to multiply, and after multiplication we get xy plus 3x minus 4y minus 12 is equal to xy, and this xy is cancelled. After cancellation xy, we get 3x minus 4y is equal to 12. So this way, this is the first equation and this is the second equation. Now, what one thing in these questions also we have to understood, generally in the remaining questions, when we find x and y, then we get the answer. But just focus. What is the question? Find the length of journey. And what is the other name of length of journey? Means distance. So we don't need to find x, y, because you have to find the distance, and distance is x, y.
And when we will solve the two equation, equation first and equation 2, then after getting the value of x and y must be multiplied. And what the product of x and y will come, that will be the original distance, that will be the length of journey. Okay, understood? Now see, question number 33. And in question number 33, a person had traveled a total distance of 500 kilometer. Okay. And in first case, 300 kilometer it traveled by train and 200 kilometer of distance has been traveled by taxi. And in second case, 260 kilometer of distance has been traveled by train and 240 kilometer by taxi. And when 300 kilometer it traveled by train and 200 kilometer it traveled by taxi, then total time is taken 5 hours. And when 260 kilometer of distance it traveled by train and 240 kilometer of distance it traveled by taxi, then total time taken is 6 minutes longer. 6 minutes longer का मतलब पहले जितना लगता था उससे 6 मिनट ज्यादा लग रहा। तो पहले 5 घंटा लगता था, तो 5 घंटा 6 मिनट लगा। अभी 6 मिनट को मैंने आवर में चेंज किया, इसलिए मैंने 6/60 लिखा, तो 1/10 51/10 आवर हो गया। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ट्रेन के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया और टैक्सी के स्पीड को y किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बट्टा स्पीड क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस कितना है ट्रेन का 300, इसका स्पीड कितना है x, तो 300/x, ये टाइम टेकन हो जाएगा ट्रेन का। और फिर डिस्टेंस बाय स्पीड टैक्सी का टाइम हो गया, तो ट्रेन और टैक्सी मिला के टोटल टाइम कितना लगा 5 घंटा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, क्लियर। फिर सेकेंड केस में हम 260 किलोमीटर ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन का टाइम कितना होगा 260/x, और टैक्सी से जाते हैं 240, तो 240/y इज इक्वल टू 51/10। ये तो मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये 5 होल 6/60 ये लिखा था कि 6 मिनट लॉन्गर लगता, मतलब पहले से 6 मिनट ज्यादा लगता है, क्लियर। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन मिल गया। अब हम दोनों इक्वेशन को फिर जब सॉल्व करेंगे तो हमें x और y मिलेगा। जो x का वैल्यू आएगा वो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा, जो y का वैल्यू होगा वो टैक्सी का स्पीड हो जाएगा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर। जनरली स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अगेंस्ट में जाना, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है फेवर में जाना। तो जब आप अगेंस्ट में जाओगे, मतलब अप स्ट्रीम में जाओगे, तो आपका स्पीड घटेगा, ठीक, इतना याद रखना। जब हम फेवर में जाएंगे यानी डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं कि एक दूसरी बात है कि इस क्वेश्चन से एक चलने वाला होता है और एक होता चलता है, जिसमें तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में सेलर होते हैं, स्टीमर होते हैं, बोट होते हैं जो पानी में चलता है। तो करेंट ऑफ स्ट्रीम या पानी का भी करेंट होता है, क्योंकि नदी समय पानी हमेशा मोशन में रहता है। तो जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में कोई सेलर जा रहा है, इसका मतलब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब वो अप स्ट्रीम में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इतना क्वेश्चन आपको कॉमन करना है, हर एक क्वेश्चन में याद रखना है कि सेलर, स्टीमर या बोट जो भी रहेगा, आप उसके स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लो। जो करंट है पानी का स्ट्रीम का, उसको हम y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। तो अप स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या होगा x - y, और डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा x + y। क्यों हो गया माइनस अप स्ट्रीम में? क्योंकि घटता है, क्योंकि अगेंस्ट में जाता है। डाउन स्ट्रीम में प्लस क्यों हो गया? क्योंकि उसके फेवर में जाता है, हमेशा याद रखना है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी 8 किलोमीटर जाता है कितने देर में? 40 मिनट में, और वापस आता है 1 घंटे में। तो हम स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया है? 8। और ये क्वेश्चन है डाउन स्ट्रीम का केस 1। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है? x + y, और टाइम है 40 मिनट्स है। हम यहाँ क्योंकि किलोमीटर पर आवर में माने हैं, टाइम यहाँ मिनट में दिया है, इसीलिए इस मिनट को हम पहले 60 में चेंज करेंगे, मतलब मिनट आवर में चेंज करेंगे। तो हम इसको जब आवर में चेंज करेंगे, सबसे बड़ी बात है आप इसको याद रखोगे कि अगर आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मानते हो, टाइम अगर मिनट में दिया हुआ है, तो उस मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे। इसीलिए स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम था 40 मिनट,
इसको आवर बनाने के लिए 60 से चेंज किए, ये 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से कैंसिल किए, 2 से ये कैंसिल किए, तो ये हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ गया। सॉल्व करने के बाद ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। क्लियर। फिर कह रहा केस 2 में कि रिटर्निंग आता है अप स्ट्रीम 1 घंटा में, तो फिर टाइम, अब यहां पर हमने बाई 60 किया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनट था, बट यहाँ कुछ नहीं किए क्योंकि यहाँ आवर में ऑलरेडी दिया है, इसलिए स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो वही रहेगा, जितना आप गए फिर उतना ही वापस आ गए, 1 से मल्टीप्लाई किए तो सेम चीज हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इसीलिए हम इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास x और y का वैल्यू आएगा, वही x जो होगा वो सेलर का स्पीड हो जाएगा और y का जो वैल्यू होगा वो करंट का स्पीड हो जाएगा, यानी स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये बेस्ड है टाइम एंड वर्क पर। आप क्लास 7 समय में बनाए होंगे कि कोई लड़का किसी काम को 5 दिन में करता है, दूसरा लड़का 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो आपको याद होगा कि अगर 5 दिन में करता है पूरा काम को, तो पूरा काम को हम 1 मानते हैं, और 5 दिन में अगर पूरा करता है तो 1 दिन का काम कितना होता है? 1/5। उसी तरह से मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है कि 2 मैन है और 5 बॉयज है, वो दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करता है, और 3 मैन है और 6 बॉयज है, उसको वो 3 दिन में करता है। तो हम पहले मान लेंगे कि एक आदमी उस काम को x दिन में करता है। अगर एक आदमी उस काम को x दिन में करता है तो 1 दिन का पार्ट कितना हो जाएगा? 1/x, और 1/x 1 मैन का हुआ, लेकिन आपके क्वेश्चन में 2 मैन है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 2/x। क्लियर। अब एक लड़का उस काम को y दिन में करता है, तो एक लड़का का 1 दिन का काम 1/y होगा। 5 लड़का है तो 5/y हो गया। दोनों मिलकर अगर 4 दिन में करता है तो उसका 1 दिन का काम 1/4 हो गया। इसीलिए हम लिखेंगे कि 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। फिर दिया है कि अगर 3 लड़का है और 6 बॉयज है और वो 3 दिन में करता है, तो फिर क्या इक्वेशन बनेगा? 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3, तो ये सेकेंड इक्वेशन बनेगा। फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ जो x और y का वैल्यू आएगा तो वो x हो जाएगा टाइम टेकन बाय मैन, और y का जो वैल्यू होगा वो टाइम टेकन बाय बॉयज। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और आते हैं 38, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन बताते हैं, जो उस टाइप पे और सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप उसको बना सकते हो। तो देखिए एक 38 और मैं बता रहा हूं, उसका फिर अगली वीडियो में और क्वेश्चन लेके आएंगे, एक पार्ट और बनाएंगे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन होता है मेंसुरेशन बेस्ड पर, जहां की रेक्टेंगल या ट्रायंगल कुछ भी दिया रहता है, तो इसमें आपको कॉमन काम करना है। इतना मैं हर एक क्वेश्चन में करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी रहेगा, एरिया बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो अगर मान लेते हैं किसी रेक्टेंगल का लेंथ हम x यूनिट मान लें और ब्रेथ y यूनिट मान लें, तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया हम जानते हैं रेक्टेंगल का L इंटू बी होता है, इसीलिए एरिया हो गया x इंटू वाई। अब कह रहा है कि उस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस 3 है, इसीलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर कह रहा है सेकंड केस में कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो पहले लेंथ x था, अब लेंथ कितना? x प्लस 3 हो गया। ब्रेथ को 2 यूनिट घटा देते हैं, तो पहले ब्रेथ y था, तो अब 2 यूनिट घटा दिए तो ब्रेथ कितना हो गया? y माइनस 2। लेकिन एरिया कह रहा है कि सेम होता, लेंथ को 3 मीटर बढ़ाने से और ब्रेथ को 2 मीटर घटाने से एरिया सेम होता, मतलब पहले का एरिया और ये अभी जो एरिया है L इंटू बी, ये दोनों इक्वल होगा। तो पहले एरिया कितना था आपका? एक्स वाई, और लेंथ कितना है? x प्लस 3, और ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है y माइनस 2। तो अगर हम x प्लस 3 और y माइनस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स वाई, x को y से किए तो एक्स वाई, फिर x को माइनस 2 से किए तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6, तो ये एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, और इस तरह से माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, हम तो इसको लिखते ही हैं कि माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाता है। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो आप इतने को बनाओगे और ये बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।